Hello students, welcome to our YouTube channel. My name is Parvinder Kaur and I am a commerce teacher. Today we start up with chapter number 9, Human Capital Formation. So start up with introduction. So every productive activity needs resources. So whenever we have to start up any productive units or production, we need resources. So resources are of two types, physical and human resources. In physical resources we mean current or capital type of resources. Current means that are regularly in use, means stock, current assets, and that are of capital means plant and machinery, building equipment that are included in it. So next is a human resources, means human beings, labor. The labor that we include for the carrying out the production activities is a human resources for us. So what is human capital? Human capital refers to the extent of workforce available in the country. Means what is the total humans that are present, the total population available in the country for doing work, and the skill, the expertise of the workforce, the extent of workforce in the form of number of persons in the workforce. So the higher the extent, जितने ज़्यादा हमारे पास human capital है, the higher the quality of human capital in the country, the better is for the economic growth and all around development of the country. So human capital and physical capital, physical difference कर रहे हैं. Physical capital is in the form of lifeless assets. So in human capital there are form of living people. It is mobility. Mobility means change, transferable from one place to another. But the physical resources is restricted. Movement is possible but not as much as possible like physical resources. The process of formation of physical capital is easier and simple, but it is of this. In human capital, this process is difficult and complex. Physical capital is intangible and the human capital is इंटेंजिबल. ह्यूमन स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते ना सीन कर सकते हैं. फिजिकल कैपिटल कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ नेशन एंड द ह्यूमन कैपिटल इन्हांसेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द नेशन. सो हेयर वी ह्यूमन कैपिटल मीन्स द एक्सपर्टीज एंड स्किल ऑफ द पर्सनस. हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, कैसे पीपल रिसोर्स बनते हैं, द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. सो पीपल बिकम रिसोर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. जितने लोगों के पास स्किल, एजुकेशन, हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं लोगों का वो अच्छा है, तो इससे क्या है, दे हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. सो कंसिक्वेंटली द रिजल्ट इज ह्यूमन कैपिटल मेक्स सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. वट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच पीपल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. ह्यूमन जो हैं मनुष्य, उनको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिकॉज दे आर कैरिंग आउट प्रोडक्टिव production of goods or productive work. So in this process, human capital that includes the skill, education attainment, health standards, expertise of the people are improved so that they may be used as a productive resources. Sources क्या हैं for the attainment of human capital formation? First is spread of information, spread of education. अगर एजुकेशन ज़्यादा होएगी, दैट्स वाई लोगों को स्किल, एक्सपर्टीज़ होंगे, उनके पास एबिलिटी है काम करने की, वो इंक्रीज़ होएगी. दैट्स वाई वो ह्यूमन कैपिटल का पोर्शन बन पाएंगे. बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो माइग्रेशन इन्हांस करती है प्लेस यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी क्या होती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है. जहाँ पे फैक्ट्रीज बिल्डअप हुई हैं वहाँ पे जाके हमें काम करना पड़ता है. दैट इज़ अ प्लेस यूटिलिटी. पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज़, क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस. Human capital and human development. Capital means the portion of human beings that are included for the carrying out production function. But human development means improving the conditions of humans. All around development आती है human development में. So problems in the way of human capital formation are huge population, lack of resources, brain drain means the migration of highly qualified और efficient Indians हैं वो developed nations में migrate हो रहे हैं, तो इससे brain drain की problem आ रही है. So the persons are born, educated and trained in India, but वाइल दे आर सर्विंग, जब उनका टाइम ये आता है कि उन्होंने सर्व करना है अपने नेशन को, तो वो मूव कर जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में. सो देयर इज़ अ लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द कंट्री. सो दैट्स वाई उनका ब्रेन ड्रेन मीन्स यहाँ से वो मूव हो रहे हैं और पैसे कमा के उस नेशन को जहाँ पे वो अब रहने लगे हैं उनको दे रहे हैं. पुअर मैन पावर प्लानिंग,
पुअर एकेडमिक इन्वायरमेंट, पुअर हेल्थ स्टैंडर्ड्स। सजेशंस आर कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उनको पॉजिटिव वे में लिखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज, रिफॉर्म्स इन एजुकेशनल सिस्टम, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग एंड चेक ऑन ब्रेन ड्रेन। ये लोगों का हमने ब्रेन वॉश नहीं होने देना कि आपको यहाँ पे कोई काम नहीं मिल रहा, आप अब फॉरेन कंट्रीज़ में मूव कर जाओ, नो। उनको ये समझाना कि हमारी कंट्री की अगर डेवलपमेंट होएगी तब भी हमारी डेवलपमेंट होएगी और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होएगा। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर ह्यूमन कैपिटल एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कैपिटल, एक इम्पॉर्टेंट प्राइमरी फैक्टर है ह्यूमन। अगर ह्यूमन्स ही डेवलप्ड हैं और उनके पास स्किल, एक्सपर्टीज़, नॉलेज है, दैट्स वाई ही हमारी कंट्री डेवलप कर पाएगी। एफिशिएंट यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल की यूजेस किस पे डिपेंड करती है, लोगों पे, ह्यूमन बींग्स पे। अगर वही, क्योंकि जो कंप्यूटर है दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेन वर्क ह्यूमन बींग्स का है कि उन्होंने कैसे काम उनसे करवाने हैं। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, ह्यूमन कैपिटल एंड इनोवेशंस, नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Next is a human capital and human development. These are the importance. Next is education, an important element of human capital. अब education एक important element कैसे है? Education is an important element because the quality of human capital की कैसी quality है हमारी capital की, that depends upon the quality of education. So ultimate objective क्या अचीव होना है? Economic development. अगर हमारे पास एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, हेल्पफुल इन स्किल फॉर्मेशन, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, पुअर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन सेक्टर इन इंडिया। एजुकेशन क्या है? ये एक ऐसा क्वालिटेटिव प्रोसेस है। क्वालिटेटिव मीन्स हमारी जो ह्यूमंस की स्किल है, नॉलेज है, इसको इम्प्रूव करता है। क्वालिटी और एनहांसिंग स्किल्स एंड कल्टिवेटिंग वैल्यूज़ इन ह्यूमन बीइंग, हमें मॉरल वैल्यूज सिखाती है एजुकेशन। अगेंस्ट द कॉमन बिलीफ, कॉमन बिलीफ जो रिचुअल चल रहे हैं वो तो हम मान रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट की अगर कोई काम गलत चल रहा है, हो रहा है, तो उसको कैसे हमने सही करना है ये भी हमें एजुकेशन बताती है। राइट एंड टू अंडरस्टैंड, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इनिशिएटिंग अ पैराडिग्म ए ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। करंट स्टेटस क्या है इंडिया का एजुकेशन में? सो लिटरेसी रेट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ दोज पीपल हु इन द टोटल पॉपुलेशन हु आर मोर देन द एज ऑफ 7 years एंड हु कैन रीड एंड राइट इन वन लैंग्वेज। सो हाइएस्ट लिटरेसी रेट है केरला में, दैट इज़ 93.9%, वेयर एज द लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार में, दैट इज़ 63.8%। एज पर सेंसस 2011 पंजाब में 76.7 मेल लिटरेसी रेट है और फीमेल है 81.5%। नेक्स्ट प्रिंसिपल करैक्टरिस्टिक्स क्या है एजुकेशन सिस्टम के? सबसे पहले ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करना है हमने एजुकेशन सेक्टर का। ये आप टेबल में करोगे, प्राइमरी एंड अपर स्कूल कितने हैं, सेकेंडरी स्कूल्स कितने हैं, कॉलेजेस कितने हैं, यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, बस इतना। नेक्स्ट एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स 5th to 8th। सो प्राइमरी एजुकेशन होती है हमारा 1 to 5th एंड अपर प्राइमरी होता है 5th to 8th। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे, दैट इज़ एलिमेंट्री एजुकेशन। सो इसमें क्या है, 6 से 14 ईयर्स के चिल्ड्रन जो हैं वो हम इंक्लूड करते हैं। और एज़ पर डाटा विद एनैक्टमेंट ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2019 यूनिवर्सलाइजेशन हुई है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन करनी है हमने, और इसमें प्रमोट किया गया है एलिमेंट्री एजुकेशन के स्प्रेड को। थर्ड इज सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। सेकेंडरी मीन्स इसमें 14 से 18 ईयर्स के चिल्ड्रन को ग्रुप को हम लेते हैं। क्लास 9th 10th +1 एंड +2 आर इंक्लूडेड हेयर इन इट। और इन्होंने एज़ पर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन की बनी है, उस पर इन्होंने सेटअप किया है कि गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन हमने देनी है फॉर द टैलेंटेड रूरल स्टूडेंट्स। और इसी से रिलेटेड सम केंद्रीय विद्यालय हैव बीन सेटअप इन फॉरेन कंट्रीज, दैट इज़ इन नेपाल, रशिया एंड ईरान। So apart from this, Indian Army was also started army school from 1983। आर्मी स्कूल्स भी स्टार्ट किए हैं 1983 में, दैट प्रोवाइड प्रमोशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन ए नेशन। गवर्नमेंट ने लॉन्च की है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान टू एनहांस द एक्सेस टू एंड क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द स्कूल्स
And next is it is also noted that the NCERT is the National Council of Education Research and Training. उन्होंने डिज़ाइन किया कि करिकुलम क्या फ्रेमवर्क होएगा कि सीनियर सेकेंडरी लेवल इंडिया में हायर एजुकेशन मीन्स मोर देन 18 ईयर्स के यहाँ पे लेंगे, और इसमें हायर एजुकेशन में कॉलेजेस आते हैं और यूजीसी इनमें अपनी इंफॉर्मेशन ग्रांट करते हैं कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि स्कूल एंड कॉलेजेस की जिनमें हाई लेवल ऑफ एजुकेशन है, और पूरी जो ग्रांट होती है जैसे स्कूल को कोई कॉलेज है, उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो कहते हैं सर्टिफिकेशन ये यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ वोकेशनल एजुकेशन। 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनी, उन्होंने इंपॉर्टेंस दी वोकेशनलाइजेशन सब्जेक्ट्स को। सो वोकेशनलाइजेशन से सेकेंडरी एजुकेशन इंप्रूव हुई है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिली है लोगों को। टेक्निकल एजुकेशन एंड मेडिकल एजुकेशन दी है। रूरल एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन जैसे कि BAU पंजाब में है, दैट एज अ प्रायर या प्राइमर यूनिवर्सिटी दैट फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो भी स्टूडेंट्स हैं दैट दे वांट टू ब्राइटन देयर फ्यूचर इन दिस सेक्टर, दे जॉइन द वेरियस कोर्सेज इन दिस यूनिवर्सिटी। अडल्ट एजुकेशन एंड फीमेल एजुकेशन फॉर द 15 to 35 ईयर ऑफ एज। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन जैसे कि हम इग्नू और NIOS से ले सकते हैं वाइल वर्किंग, वी ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ एनी डिग्री। द प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट्स के एजुकेशन सिस्टम के फेलियर टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन, हाई ड्रॉप आउट रेट, लो पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, पुअर क्वालिटी, फेलियर टू अचीव वोकेशनलाइजेशन, इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन, जेंडर गैप, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइड अर्बन रूरल गैप एंड राइजिंग कॉस्ट, बिकॉज एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। सजेशंस हैं दैट इज़ अ ऑपोजिशन ऑफ प्रॉब्लम्स, सो दैट यू हैव टू रीड आउट दिस इज एंड ऑफ चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।